Hello students. In last topic I explained you meaning and features and scope of controlling. Today topic is importance of controlling. First importance is helps in achieving organizational goals. Students, when the plans are made in the organization, these are directed towards achievement of organizational goal, and the controlling function ensure that all the activities in the organization take place according to plan, and if there is any deviation, timely action is taken to bring back the activities on the path of planning. When all the activities are going according to the plan, then automatically these will direct toward the achievement of organizational goal. Students, as you know, when the plan is made in the organization for achievement of organizational goal, then the action will taken on the आपका plan, and controlling function, it is ensured that all the activities of organization will accomplish according to the आपका plan. If any deviation is created, then take the necessary steps, take the necessary कह लीजिएगा आपका measures to prevent that आपका deviation and bring back all those activities on the आपका plan path, यानी कि जो plan बनाया था उस path पर उस way में, so that the organization can achieve your organizational goal. It's clear? Next is judging accuracy of standard. Through strategic controlling, we can judge whether the standard or target set are accurate or not. An accurate control system revises standards from time to time to match them the environmental changes. Students, through the controlling up, you can easily judge कि standard जो target है that is accurate or not. For example, you have set the आपका target कि 100 units per month producing in the organization, but actually 120 units are produced by the आपका production department. तो in this way कि your plan is not accurate. इट्स क्लियर. तो कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो ये जज कर देता है कि आपका जो प्लान है वो एक्यूरेट है या नहीं. इफ़ योर प्लान इज एक्यूरेट, देन दैट प्लान विल बी आपका रिवाइज टाइम टू टाइम एंड अगेन. इट्स क्लियर. सो स्टैंडर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम मैच आपका देम विद एनवायरमेंटल चेंजेस, जो हमारे चेंज टेक प्लेस होता है इन द एनवायरमेंट. सो द टारगेट्स आल्सो कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू आपका चेंजिंग एनवायरमेंट्स. सो जो आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है ये जज करता है आपके टारगेट को कि डेट इज़ एक्यूरेट और नॉट. थर्ड इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. कि लाइफ लाइक ट्रैफिक सिग्नल, कंट्रोल गाइड द आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक. जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल यू हैव प्रोवाइड द आपका डायरेक्शन, तो सेम वे कंट्रोलिंग सिस्टम controlling the all activities in the आपका organization and give the right direction and give the आपका right way so that the activities on carry on आपका right track. Each activity is performed according to predetermined standards. Every activity in the आपका organization is conducted, is performed according to the आपका predetermined plan. As a result, there is most and effective use of resources. जो रिजल्ट होता है इसका कि अगर हम अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है कि जो रिसोर्सेज है वो मोस्ट वे में, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन. As you know, students, an effective control system communicates the goals and standards of appraisal for employees to subordinates well in advance. कि इन कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो आपको जो गोल्स है, जो टारगेट्स है, वो एडवांस में कम्युनिकेट कर दिया जाता है
एंड सो ऑल द एम्प्लॉयज विल आपका मोटिवेट टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल. A good control system also guides employees to come out from their problem. जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल नीड्स हैं, उनको सॉल्व करके उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाता है. दिस फ्री कम्युनिकेशन एंड केयर मोटिव द एम्प्लॉयज़ टू गिव बेटर परफॉर्मेंस. जो आपका एक केयर एम्प्लॉयज़ का जो केयर आप करते हैं, उससे जो एम्प्लॉयज़ आपके अगेंस्ट, आपके टूवर्ड्स, आपके प्रति जो है वो मोटिवेट होता है. इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. कंट्रोल क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और बेस्ट एटमॉस्फेयर्स को क्रिएट करता है. इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम कीप्स द सबऑर्डिनेट्स अंडर चेक एंड मेक्स श्योर दैट परफॉर्म देयर फंक्शंस एफिशिएंटली. जो इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम है वो सबऑर्डिनेट्स को अपने अंडर में चेकिंग करता है. उससे एवरी एम्प्लॉयज सबऑर्डिनेट जो है चेक होता है कि एंड मेक श्योर, और ये मेक श्योर करता है कि डेट परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन, जो एम्प्लॉयज अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपना फंक्शन कर रहे हैं, डेट विल एफिशिएंटली परफॉर्म. शार्प कंट्रोल कैन हैव ए चेक ओवर डिसऑनेस्टी. जो आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम है, वो चेक ओवर डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी चेकआउट करता है. स्ट्रिक्ट कंट्रोल मॉनिटर एम्प्लॉयज़ वर्क ऑन कंप्यूटर मॉनिटर विच ब्रिंग्स मोर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन वर्क एनवायरनमेंट. स्टूडेंट जी कहता है कि स्ट्रिक्टली कंट्रोल जो सिस्टम है आपका, कंट्रोलिंग मॉनिटर जो है वो एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करता है इन बेस्ट वे, सो दैट दे वर्क इन डिसिप्लिन, दे प्रोवाइड, कह लीजिएगा, मेक द आपका डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर इन द आपका ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. कंट्रोल हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन मीन्स एंड एंड्स. कंट्रोलिंग मेक्स श्योर दैट कि प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड दैट वेरियस फैक्टर्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली. स्टूडेंट जो हमारा कंट्रोलिंग हेल्प करता है मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन मीन्स एंड एंड्स, मतलब जो हमारे सोर्सेज हैं और जो हमें उसको यूज़ करना, उनमें कंट्रोल बैलेंस बना के रखता है. कंट्रोलिंग ये श्योरिंग करता है कि जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो टेकन किया गया है एंड वेरियस फैक्टर्स को मेंटेन करके रखा गया है, यानी कि प्रॉपरली उसको मेंटेन किया गया है. ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और टारगेट और प्लान. जितना भी डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ हैं सभी को प्रीडिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग किया जाता है. विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर. जो एक दूसरे से बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है, बहुत ही आपका कह लीजिएगा इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है विद वन अनदर, एक दूसरे पर. कंट्रोल प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. कंट्रोल जो है एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को प्रोवाइड कराता है. सो दीज आर द स्टूडेंट, दीज आर द आपका कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंस